Hello everyone, we were studying bryophytes and we have seen the introductory part of bryophytes. The term bryophytes was coined by Brown and the study of bryophytes is known as bryology. They generally are small aquatic plants but they grow on moist soil and they require water for fertilization. Hence they are called amphibians of plant kingdom. They also lack xylem and phloem, that is your vascular bundles, they are absent. Hence they are also known as avascular plants or avascular cryptogams, right? Their structure is generally thalloid, means their body is not differentiated into root, stem or leaf. Okay, and in that we have seen the structure of mercantia. What is mercantia? आपको एनसीईआरटी में भी फोटो दी हुई है. मर्केंशिया एक ब्रायोफाइट है जो बहुत फेमस है सबसे ज्यादा. इसके और भी मेंबर्स है, इसके दोस्त भी है और इसके जैसे दिखाई देने वाले. लेकिन आपको एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट समझना है तो मर्केंशिया का स्ट्रक्चर समझते चलो, उसके साथ थोड़े से मॉडिफिकेशन करके आप दूसरे क्लासेस भी आसानी से समझ सकते. इन मर्केंशिया वी हैव सीन दैट, एक बार फिर से देख रहे हैं प्लस थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि आज मर्केंशिया के आगे बढ़ना है अपने को और अपने को मोजेस का स्ट्रक्चर भी देखना है. Okay, so Mercantia is the bryophyte which belongs to your class liverworts. कौन से क्लास को बिलोंग करता हो? Liverworts, also known as Hepaticea. Hepaticea. Why? Because Hepata मतलब लीवर और liverworts मतलब their thallus is having a structure just similar to lobes of our liver. लीवर को जैसे लोब्स रहते, जिस तरीके से ऐसे फुला हुआ रहता लीवर जगह उसमें लोब्स तैयार होते, सो उसी तरीके के लोब्स इनमें दिखाई देते. therefore these members are classified under liverworts. ओके, मर्केंशिया का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं लेकिन रिवाइज कर रहा हूं फिर से क्योंकि आपको क्या क्या याद रखना है इसके अंदर. आपको एनसीईआरटी के हिसाब से जो दिया हुआ है मैं जैसे बता रहा हूं स्टेप वाइज पॉइंट वाइज वैसे याद रखो, लर्न ही हो जाएगा आपको. सो मर्केंशिया इट इज हैविंग अ थैलॉइड बॉडी. थैलॉइड body means it does not have a well developed roots, well developed stem, well developed leaf, they are absent, but it is dorsiventrally flat. It is dorsiventrally flat. These are the characteristics of your liverworts also. मैं मर्केंशिया के बता रहा हूँ, मर्केंशिया is the example of liverworts, उसके एग्जांपल्स है और liverworts के कैरेक्टर्स मतलब मर्केंशिया के कैरेक्टर्स. ठीक है, so they are dorsiventral, they have thalloid body, means their body is not, what do you mean by thalloid? MCQ में what is thallus? The structure which cannot be differentiated into root, stem and leaf. It is having a cellular mass. It is having a cellular mass, irregular mass of cells. Thallus. Okay. It is dorsiventrally flat, means it has a flat structure dorsally, means on upper side as well as ventrally on lower side. Ventrally it has, ventral surface पे क्या क्या है? On ventral surface you can find thread-like rhizoids, thread-like rhizoids which are attached to the substratum, which are attached to the substratum. आप फोटो देखते चलो, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट्स आपके समझ में आ जाएगा. देखो एकदम धागे धागे दिख रहे, एकदम पतले पतले कलरलेस ऐसे थ्रेड्स दिख रहे. They are present on ventral side and on dorsal surface. On dorsal surface you can find air pores and small cup shaped structures known as gemma cups. Small cup shaped structures known as gemma cups. Also the dorsal surface produces gamete producing organs or your sex organs. It will also produce sex organs at the branched ends, जहां पे ब्रांचिंग दिख रही, एंड्स खत्म हो रहे वहां. तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिया है इस तरीके से एनसीईआरटी का जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नीचे उनको राइजोइड्स बताए वाले, प्लस यहाँ पे आपको ऐसे एयर पोर्स है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, रेस्पिरेशन टाइप एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली वहां पे होगा एयर पोर्स के थ्रू. प्लस आपको वहां पे ऐसे कर्व शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड जेमा कप्स. दे आर कॉल्ड जेमा कप्स. Okay, what are gemma cups? MCQ पूछेंगे what are gemma cups? They are asexually reproducing parts. They are asexual structures
means simply that cups will consist of small cells which are produced by mitosis. Meiosis नहीं होता, गैमेट बीमेट नहीं बनते उसके अंदर. Only small cells are present here. Okay, each cup consists of green smaller cells which are called gemmy. जेमा कप के अंदर क्या रखा है? जेमी. ओके, एंड दैट जेमी आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस. वही के सेल्स डिवाइड होंगे और माइटोसिस से ग्रीन सेल्स तैयार करेंगे. These Gemmy, when they detach, these cups when they detach and the Gemmy come out, and when they reach water surface and they reach a soil surface, moist soil, at that time these Gemmy will germinate here and it will develop into a new thallus. It will develop into a new thallus by mitosis. रिपीटेड डिवाइड होंगे, फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो जेमी से क्या होगा, फिर से एक नया थैलस तैयार होगा, अ न्यू गैमेटोफाइट इज प्रोड्यूस्ड. ओके, सो व्हाट आर दीस जेमी? दे आर द असेक्सुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस असेक्सुअली प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड इन द कप लाइक स्ट्रक्चर्स. They are green in color and on getting suitable condition they germinate to form a new gametophyte. To form a new gametophyte. Why is it called gametophyte? Because it has male and female gamete producing structures. Male and female gamete producing structures. But male structures or male sex organs are produced on different plant body and female structures are produced on another plant body. Female structures are produced on another plant body. So जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग रहते हैं, इधर ऐसा एक बात याद रखो, ये फीमेल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है. मेल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एंथेरिडियम, एंथेरिडियम और एंथेरिडियोफोर. आपको डायग्राम में वर्ड देंगे, एंथेरिडियोफोर, एंथेरिडियोफोर. मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियोफोर. ये पूरा जो स्टॉक है उसके साथ में इस तरीके से कार्डी दिख रही ग्रीन, उसके ऊपर छतरी जैसा दिखाई देगा, दैट इज एंथेरिडियोफोर प्रोड्यूस्ड ऑन मेल थैलस, मेल थैलस. ओके, एंड सिमिलरली फीमेल स्ट्रक्चर विल बी देयर एंड इट इज प्रेजेंट प्रोड्यूस्ड ऑन फीमेल प्लांट, फीमेल थैलस, फीमेल थैलस. इट इज कॉल्ड आर्चिगोनियो, आर्चिगोनियम और आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर. आर्कगोनियोफोर बोलते हैं एक्चुअली, आर्कगोनियोफोर और आर्कगोनियम, बट आर्ची बोलेंगे तो अच्छे से याद रहेगा तुमको. आर्चिगोनियोफोर्स और आर्कगोनियम, आर्कगोनियोफोर या आर्कगोनियम. सिमिलरली ऊपर वाला एंथेरिडियोफोर और एंथेरिडियम. दिस इज मेल स्ट्रक्चर एंड दिस इज female structure. Lower one is female sex organ. So what are the male and female sex organs in liverworts? Male and female sex organs are antheridiophore or antheridium is male, and female structures are archegonium or archegoniophore. They are present in liverworts. Okay, anther से याद रख सकते हैं आप, anther is the male part, archie is the female part, ऐसा याद रखो. Okay, now what about these structures? Male structure is club shaped, club shaped, or female structure it is flask shaped. It is club shaped. Male structure club जैसा दिखाई देगा, मतलब ऊपर से ऐसा रहेगा, नीचे से ऐसा रहेगा, ठीक है. क्लब पत्तियों में नहीं, क्या है अपन जो आपके प्लेइंग कार्ड रहते हैं उसमें ऐसा क्लब शेप रहता है, ये वाला डायमंड शेप रहता है इस तरीके से, राइट. हार्ट शेप रहता, ओके, और स्पेड रहता है इस तरीके का, right. So this shape, club shaped. So male, that is sex organ, that's your antheridium or antheridiophore. So antheridium is club shaped, which produces male gametes, which produces male gametes called antherozoids, antherozoids. These are the male gametes, male gametes in your liverworts. They are zoids. Zoa मतलब flagellate and they are motile. Zoo मतलब animal, अपन भी motile है. So these gametes are also motile
and flagellate gametes. Motile and flagellate male. मतलब इनके जो मेल गैमेट्स रहेंगे, सो मेल गैमेट्स आर हैविंग फ्लैजेला, 2 flagella are there. Okay, male gametes are antherozoids and they are flagellate gametes. Whereas the female structure, that is an archegoniophore, or archegonia, it is flask shaped. It is flask shape. अब ये जो एक छतरी है, एक छतरी के अंदर क्या है, नीचे से अगर इसको जूम करें आपने, सो इस तरीके से छतरी है पूरी, मैं बड़ी से दिखा रहा हूँ, उसके अंदर ऐसा फ्लास्क और उसको ऐसे एक नली जैसा रहेगा, फ्लास्क और उसको एक नली जैसा, फ्लास्क और एक नली जैसा, फ्लास्क इधर से नली, समझ रहा है क्या है, फ्लास्क और नली जैसा. So it is flask shape and archegonia is they are flask shape and they consist of several cells. Here they consist of several cells and a single non-motile egg or female gamete. Single non-motile egg or female gamete. Single non-motile egg or female gamete. तो इनके अंदर क्या रहेगा, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर्स के अंदर एग इज प्रोड्यूस्ड और योर फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, मींस इट विल नॉट मूव, इट विल बी विदाउट फ्लैजेला, इट विल रिमेन देयर ओनली. ओके, देयर विल बी, अगर मैंने ये स्ट्रक्चर निकाला यहां से, दिस फ्लास्क शेप, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ. ये जो फ्लास्क है इस तरीके रिवर्स कर रहा हूँ, उल्टा लटका रहता है ऐसा फ्लास्क, उसको अगर मैंने निकाल के स्टडी किए, ओके, सो आपको ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से फ्लास्क शेप. यहां पे आपका फीमेल गैमेट बैठा है, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 to 8 सेल्स रहेंगे उसके अंदर. दिस इज कॉल्ड नेक सेल, venter cells. Okay, neck cell and venter cell, and they are present above the female gamete. Okay, they will form the neck of that flask. Flask जो रहता है, आपके कोई भी फ्लास्क रहेगा उसपे के नेक रहेगा और फिर नीचे से उसका सोलन पूरा पार्ट रहेगा. सो सोलन बॉडी है और ये नेक है उसकी, एंड दिस इज द ओपनिंग. ठीक है, यहाँ से ऐसे रहे. सो दिस इज द फीमेल गैमेट एंड these are the neck cells. Okay, so this is what the structure of your gametophyte. Structure of gametophyte of your liverworts. What is the structure? Gametophyte of liverworts is thalloid. It is not differentiated into root, stem and leaf-like structure. Yes, some members are having leafy structures, but they don't have actual or true leaves. They are without true leaves, without true stem, without true roots. But root-like structures are present on the ventral side. They are called rhizoids. They are called rhizo मतलब root, लेकिन root जैसे दिखने वाले को rhizoid. Okay, they are having dorsally air pores and gemicups as well as they produce sex organs dorsally. Sex organs are produced on distinct thalli or thallus, अलग अलग thallus पे बनते. Male thallus will produce antheridiophore and female thallus will produce archegoniophore. Antheridiophore consists of antheridia which are club shaped, and archegoniophore consists of archegonia which are flask shaped. Antheridium produces motile antherozoids, they are male gametes, and archegoniophore produce single non-motile egg or female gamete in it, which is covered by neck cells in the neck of your flask. Okay, what happens, how the fertilization takes place when these male gametes, gametophyte is mature. जब ये मैच्योर हो जाता, देन इट बर्स्ट्स, ये फूट जाएगा, एंड मेल गैमेट्स दे आर रिलीज्ड इन वाटर. यहाँ पे पानी रहेगा, मैंने पहले बताया पानी के नजदीक रहते हैं. सो दिस मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन वाटर. Male gametes are released in water. These male gametes they will move with water. They will reach, यहाँ तक पानी भर कर रहेगा इसमें भी. Okay, they will reach the neck cell and they will enter the archegonium. Male gametes will enter the archegonium and they will fertilize the egg present in it. Male gametes are released, since they are motile, they will move with the help of flagella and they will enter the archegonium and they will fertilize the egg or female gamete. After fertilization, the male gamete and female gamete they will join to form the zygote. इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे
zygote, these cells degenerate. Zygote is formed. This zygote undergoes multiple mitotic divisions. Zygote directly does not produce spores. जैसे कि आपने algae में देखा होगा zygote undergoes meiosis to produce spores, लेकिन यहाँ पे zygote divides and it produces another structure known as a structure called sporophyte. Zygote divides by mitosis to produce a multicellular structure known as sporophyte. समझ रहा, नया नई चीज आ रही. गैमेटोफाइट के ऊपर क्या तैयार हो रहा है? स्पोरोफाइट. कैसे? मेल एंड फीमेल गैमेट विल फ्यूज एंड मेल गैमेट विल रीच द आर्चिगोनियम. It will form zygote by fusing with female gamete. This zygote will divide by mitosis to produce a multicellular structure known as sporophyte. Sporophyte may have three parts. ये जो sporophyte बन रहा है उसको तीन पार्ट हो सकते हैं: फुट, कैप्सूल एंड सेटा. उसके अंदर इस तरीके से जुड़ाला रहेगा वो, फीमेल प्लांट बॉडी को जुड़ाला रहेगा वो. इट विल बी अटैच्ड हियर टू फीमेल गैमेटोफाइट ओनली. ये गैमेटोफाइट है ना, पहले गैमेट्स बने थे उसके ऊपर, तो उसको गैमेटोफाइट बोलने का. अब उसके अंदर ही क्या हो गया? स्पोरोफाइट तैयार हुआ. बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स zygote is formed and zygote has divided multiple times to produce sporophyte. So this sporophyte is attached here. It has foot, capsule and seta. It has three parts: foot, pair, capsule and seta. Capsule will be multi-layered, double layered, triple layered depending upon the species. कौन सा species है उसके हिसाब से. And the cells of capsule will divide by meiosis. Cells of capsule will divide by meiosis to produce haploid spores. उनके अंदर क्या तैयार होंगे? Haploid spores are produced. क्या क्या बोल रहा हूँ सुनते चलो, मैं लास्ट में तुमको साइकिल बना के बताऊंगा पूरा ड्रॉ करके. बट स्पोरोफाइट कैसे तैयार हुआ? व्हाट इज स्पोरोफाइटा? स्पोरो मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग, फाइटा मतलब प्लांट बॉडी. बट दिस स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट ओनली. व्हाई? बिकॉज मेल गैमेट हैज कम हियर एंड इट हैज फ्यूज्ड विद द फीमेल गैमेट हियर and it will remain here only. It will form zygote. Zygote will divide by mitosis to produce a multicellular body known as sporophyte, having three parts. Not necessarily always these three parts are present. Sometimes only capsule is present, foot and seta will be absent, but generally sporophyte has three parts: foot, capsule and seta. Foot, capsule and seta. These foot, capsule of these cells, some cells of capsule will divide by meiosis. Why meiosis? These cells will divide by meiosis to produce spores. They are haploid spores. Why meiosis? Because आपका जो gametes थे, gametes, this is male gamete, this was your female gamete here. Gametes are always haploid. Gametes are always haploid. Gamete will fuse with gamete to produce what kind of zygote? Diploid. Zygote कैसा बनेगा? Diploid. And that diploid zygote will undergo mitosis. तो diploid cell में mitosis होकर diploid cell तैयार होती. Chromosome number will not reduce and therefore sporophyte will be having a diploid structure. Sporophyte will be having a diploid structure. मैंने आपको previous lecture में differentiate करके बताया था. Gametophyte is always haploid. Sporophyte is always diploid. So it is having diploid cells. Why? Because zygote was diploid, hence it will be also diploid. Okay, this sporophyte will then undergo meiosis. इसमें क्या करूं? Meiosis. क्या होगा फिर? Meiosis में chromosome number gets reduced to half and the spores are produced. Spores will be there for haploid spores. Spores will be there for haploid spores. And these haploid spores, when this capsule bursts, that spores, they are actually non-motile spores. Okay, they are released in water. ये फूट जाएंगे यहाँ से, and the spores are released in water, and spores also germinate on getting suitable condition, and they now germinate to form haploid gametophyte. Spores से क्या बनेगा? नया haploid gametophyte.
समझ में आ रहा है? वापस से गैमेटोफाइट तैयार हो जाएगा, वापस से ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और फिर से इस स्ट्रक्चर पे ऐसे छत्रे आएंगे, फिर छत्रों में गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट ऐसा स्पोर्स बनाएगा और जर्मिनेट होकर वापस से उसमें स्पोर्स से बनेगा वापस से गैमेटोफाइट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, आपका हैप्लॉइड गैमेटोफाइट रहेगा, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, ओके, इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स बाय गैमेट्स बाय माइटोसिस, क्योंकि देखो हैप्लॉइड पे हैप्लॉइड तैयार करना है तो माइटोसिस लगेगा, एंड अगेन गैमेट्स विल फ्यूज, they will form diploid zygote, diploid zygote will form diploid sporophyte by developing in through mitosis, but it will divide by meiosis to produce spores, spores again produce gamete, okay। अगर आपको इसकी लाइफ साइकिल समझने की है तो शुरुआत करने का आपके सामने फोटो भी आ रही है, मैं आपको शॉर्ट में ड्रॉ करके बता रहा हूँ, प्लस आपके सामने एकदम ग्रीन कलर के फोटो, उसके अंदर आपको थैलस वैलस दिख रहा है, पॉज करके समझने की कोशिश करो, पहले मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। क्या थी फोटो, अब छोटी हो गई होंगी फोटो, क्या है फोटो के अंदर देखो, शुरुआत करने का मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ओके, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, ओके, ये मेल है ये फीमेल है, सो मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट, ओके, दीज आर गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स, दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ओके, दे विल प्रोड्यूस, मेल गैमेटोफाइट विल प्रोड्यूस एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स बाय माइटोसिस, क्योंकि देखो मेल गैमेटोफाइट के सेल्स ही हैप्लॉइड है तो उसके अंदर फिर मियोसिस नहीं हो सकता, हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होगा, सो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस हियर, नॉट बाय मियोसिस, ठीक है, ये एक केस याद रखना है। सिमिलरली फीमेल गैमेट दैट इज एग इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इट इज मोटाइल, इट इज नॉन मोटाइल, ओके, दे विल फ्यूज to form a diploid zygote, diploid zygote, okay, zygote will divide by mitosis to produce a sporophyte, sporophyte which is always diploid, okay, sporophyte will produce spores, sporophyte will produce spores, sporophyte will produce spores, okay, these are the spores, and spores are produced always by meiosis, so spores will be, sporophyte diploid था, उसके अंदर के spores कैसे रहेंगे फिर, इसीलिए haploid, then these spores they are released and they germinate on getting suitable condition, so germination of spores will occur under suitable condition, पानी मिलेगा, जमीन अच्छी मिलेगी, गीली जमीन, moist soil, again that spore will germinate to form your गैमेटोफाइट वापस, क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो इसके फिर रिलीज होने के बाद उससे जो जर्मिनेशन होगा, तो ये एक स्पोर था, उसमें माइटोसिस होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करके फिर पूरा का पूरा थैलस तैयार हो जाए, मतलब उसमें सिर्फ माइटोसिस होते रहे। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ स्पोर बनाने के लिए मियोसिस होगा, बाकी सब जगह माइटोसिस होने वाला है, देखो ये भी माइटोसिस से बन रहा, ये भी माइटोसिस से बन रहा है, ओके, सिर्फ स्पोर, क्योंकि आपको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर तैयार करने का है, ठीक है, हैप्लॉइड पर से हैप्लॉइड बनाने का, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो माइटोसिस करेंगे, फिर उनका फ्यूजन होकर डिप्लॉइड बनेगा, जो तुरंत डिवाइड नहीं होगा, एक स्टेज आएगी स्पोरोफाइटिक स्टेज, और फिर उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे बाय मियोसिस एंड स्पोर्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स। अगर आप यहां देखेंगे, सो गैमेटोफाइटिक स्टेज, आपको ये हैप्लॉइड स्टेज यहाँ पे जिंदगी उसकी देखो, यहां से लेके तो यहां तक, नहीं सॉरी, यहां से लेके इस तरीके से यहां तक, दिस इज हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों? क्योंकि देखो स्पोर्स हैप्लॉइड है, सिंगल क्रोमोसोम है उसके अंदर, सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये बाद में गैमेटोफाइट बनेगा, दैट इज आल्सो हैविंग हैप्लॉइड सेल्स, गैमेट्स आर आल्सो हैप्लॉइड, मतलब ये जो जिंदगी का हिस्सा है, दिस इज हैविंग हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड सेल्स, और फिर जाइगोट और स्पोरोफाइट, ये एक छोटा सा हिस्सा है, दिस इज डिप्लॉइड फेज इन डिप्लॉन्टिक फेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, आधा हैप्लॉन्टिक है आधा डिप्लॉन्टिक है, मेजर कौन सा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ज्यादा है, इट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ रहे क्यों इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं? बिकॉज हाफ पार्ट इज हैप्लो एंड हाफ इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपको लास्ट पेज पे दिया रहा है समरी के ऊपर चैप्टर में, सो उसमें आपको थर्ड वाली लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हाफ पार्ट हैप्लॉन्टिक पार्ट दैट इज गैमेटोफाइटिक फेज alternates with the sporophytic phase. Gametophytic phase alternates with the sporophytic phase, hence it is called haplodiplontic life cycle. लेकिन इसके अंदर बात क्या है? Your gametophyte is free living, it is free living, it is green, free living, green, not dependent on sporophyte, वो पानी में से वो खुद का खुद ग्रो होता, and it is dominant phase in life cycle. Dominant है, मेन है वो। स्पोरोफाइट नाम का कोई प्लांट बॉडी तैयार नहीं हो रही अलग से। स्पोरोफाइट इज एक्चुअली डेवलपिंग ऑन द फीमेल गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज डेवलपिंग ऑन द फीमेल गैमेट पे जा रहा, मेल पे नहीं आता वो, क्योंकि मेल गैमेट फीमेल पे जाता और वहां पे जाइगोट तैयार होता। सो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन gametophyte. It is green, I know it is green, it has green cells, it can do photosynthesis, but it derives its nutrition from gametophyte and hence it is dependent here and it is not free living. It is not free living. It is not free living. It is always haploid and it is diploid. Okay, it is dominant phase. It is dominant phase and it is having very short phase. It is dominant, it is short phase, बहुत कम रहेगा, ज्यादा लंबा समय जिंदगी का जो गुजरेगा वो गैमेटोफाइट के रूप में गुजरेगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट चलते रहती। मैंने तो आपको लीवर वर्ड्स का बताया, अभी अपने को फ्यूनेरिया वगैरह बाद में आएगा। सो मर्केंशिया में कैसी चलती लाइफ साइकिल समझना, आपको इस तरीके ग्रीन ऐसे ऐसे पढ़ाए दिखाई देंगे, ऐसे चपटे चपटे प्लांट्स, वो एक्चुअली गैमेटोफाइट्स रहेंगे, उनके ऊपर गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे मेल फीमेल, बट अलग अलग प्लांट बॉडी पे आएंगे। और जब उनके गैमेट्स फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा फीमेल बॉडी पर और उससे स्पोरोफाइट वहीं पे तैयार होंगे और उसमें से स्पोर्स निकल के वो दूसरी जगह जाके गिरेंगे और नए गैमेटोफाइट्स तैयार करेंगे। ओके, अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे आज के लिए कि आप जैसे कि देख रहे हैं मेल और फीमेल स्ट्रक्चर जो है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स, दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट। एक ही प्लांट में प्रोड्यूस हो रहे क्या? नहीं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में देखो, ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस ओनली मेल गैमेट्स and human female will produce only female gamete. Means male sex organs are present in different body and female sex organs are produced in different body. तो जब ऐसी कंडीशन रहती है उसको बोलने का डायोइशियस या डायोशियस ऑर्गेनिज्म। डायोशियस ऑर्गेनिज्म means what? Male and female structures are present in distinct bodies, distinct या different bodies। अलग अलग बॉडी में मेल बॉडी अलग रहेंगी, फीमेल बॉडी अलग रहेंगी। उसमें मेल ऑर्गन्स रहेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे। फीमेल बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे, उसमें फीमेल गैमेट्स बनेंगे। दोनों एक ही बॉडी में नहीं होना, वो नहीं। जिसमें दोनों एक ही बॉडी में रहते उसको बोलते हैं मोनोइशियस कंडीशन, मोनोशियस ऑर्गेनिज्म। मोनो मतलब सिंगल बॉडी, डाय मतलब दो बॉडीज, मेल बॉडी अलग फीमेल बॉडी अलग, दोनों बॉडीज अलग अलग। ओके, और एक ही बॉडी में दोनों स्ट्रक्चर, जैसे कि अर्थवर्म, अर्थवर्म में क्या रहता? टेस्टिस आर प्रेजेंट एंड ओवरीज आल्सो प्रेजेंट इन द सेम अर्थवर्म। वो जो अर्थवर्म रहता है उसको बोलते हैं मोनोइशियस। व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी इट इज कॉल्ड मोनोशियस स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म। When male and female structures are produced on different species, it is called dioecious organism. कंसेप्ट याद रखो, कई बार आएगा आपको, मैं बार बार पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय डायोशियस। मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडीज, जैसे कि ह्यूमन बीइंग इज अ डायोशियस ऑर्गेनिज्म। क्या कोई है मोनोशियस? दोनों है क्या किसी के पास? नहीं, वी आर डायोशियस ऑर्गेनिजम्स। देन व्हाट इज मोनोशियस? द ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स इन द सेम बॉडी। ओके, बट एग्जांपल हियर अर्थवर्म। ओके, डायोशियस का एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। इसमें एग्जांपल ये कौन सा होगा? मर्केंशिया। मोनोशियस है क्या डायोशियस है? मर्केंशिया इज देयरफॉर डायोशियस ब्रायोफाइट बिकॉज मेल thallus is different and female thallus is different. Male sex organs are produced on male thallus, female are produced on female thallus.
ओके, लाइफ साइकिल क्लियर हुई, समझ में आई मर्केंशिया की लाइफ साइकिल। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और आपको फिर मोजेस का लाइफ साइकिल बता दूंगा और उसके साथ उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता दूंगा। So here I will stop today. We will see the life cycle and the examples of your Moses and their economic importance in our next lecture.